Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I am from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad, and we are here in a series of class 12 NCRT Geography. And in this series, we are on chapter number 3, that is Human Development, and we are currently studying the book India, People and Economy. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then watch this one. You can continue with this one as well, but it would be better to know the context of what are we studying right now. So today would be the probably the end of this chapter, and welcome, and I hope you like this session. So, in the previous class of this series, we were talking about how what is the human development case in India. Then we talked about Swachh Bharat mission. We talked about what could be the possible reasons that there was less human development in some states, and there were the human development index was low in some states and high in some states. So we analyzed some reasons. But in the next portion, we were talking about how development, population, and environment coexist. And in this coexistence, is there a balance, is there a harmony, या फिर बहुत ज़्यादा disturbed है सब कुछ? क्या डेवलपमेंट होलिस्टिक है? क्या जब भी डेवलपमेंट हो रही है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है? इज़ द डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग इज़ मेकिंग everybody equal, or is it making everybody at par or not? So in this we saw some negative effects of development, जैसे कि हमने देखा था social inequality, discrimination, deprivation, environmental degradation. All these things we saw in some in the negative parts of development. We saw the role of civil societies, यानी कि that is me and you in this. So, while talking about the role of civil societies, that is you, me, our society as a whole, how do we contribute in this development? And we would be starting with the next portion, and that is at the other extreme of this approach lie the views expressed by the neo-Malthusians. So, in the last class, we were talking about how the UNDP, that is United Nations Development Program, included some of the changes in their Human Development Report. For example, progressive democracy, participation. These were the minimum conditions they applied for people for calculating human development. In this only, we saw about how civil societies, me and you, we should promote our governments टू डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वॉर को ख़त्म करना चाहिए, आर्म फोर्सेस की कम से कम मोबिलिटी. हमने गन और बटर पैराडॉक्स के बारे में बात करी थी. सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दी अदर एक्सट्रीम. अभी अदर एक्सट्रीम का मतलब होता है, एक्सट्रीम मतलब कोई भी चीज़ जो अपने हद से एकदम डिफरेंट साइड हो जाए. तो अदर एक्सट्रीम का मतलब समथिंग विच इज़ ऑन दी अपोजिट साइड पे एक अप्रोच है जो है न्यू माल्थीजियंस की थ्योरी. ये है इन्वायरमेंटलिस्ट और रैडिकल इकोलॉजिस्ट. अभी इन्वायरमेंटलिस्ट और रैडिकल इकोलॉजिस्ट कौन हो गए? रैडिकल वो होता है जिसको इमीडिएट चेंज चाहिए होता है. देयर कैन बी पीपल डेमोक्रेट्स जो कि आप चेंज करो, धीरे धीरे करो, हम यही हैं, आराम से आप बदलते रहो. देन देयर आर रैडिकल्स, अर्जेंट इमीडिएट चेंज चाहिए जिनको. सो ये जो रैडिकल इकोलॉजिस्ट थे, दे वर वेरी सस्पिशियस अबाउट दी डेवलपमेंट कि ये कैसा डेवलपमेंट है जो सारा सिचुएशन ही ख़राब करता जा रहा है, जो इन्वायरमेंट को इतना हार्म कर रहा है. सो ये दे बिलीव दैट फॉर अ हैप्पी, इनके हिसाब से अगर आपको हैप्पी और पीसफुल सोशल लाइफ चाहिए तो पॉपुलेशन के बीच में और नेसेसरी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. इन थिंकर्स के हिसाब से द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन हैज़ वाइडेंड आफ्टर 18th सेंचुरी. उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बीच में अभी हमको ऑल ऑफ अस नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ऐसा नहीं है ना, चलो मन कर रहा है आज यहाँ पे मैं एक नई ज़मीन उगा देता हूँ, छत के ऊपर खेती कर लेते हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. और ये लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन यानी कि पीपल के बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट रिसोर्सेज सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स द गैप बिटवीन द रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन आर वाइडन. और ये कब हुआ है? 18th सेंचुरी की बाद से ये गैप ज़्यादा बढ़ने लगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुई. There have been marginal expansion in the resources of the world in the last 300 years.
जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं। मार्जिनली का मतलब बहुत बहुत लिमिटेड अमाउंट से इंक्रीज हुए हैं, बट जो पॉपुलेशन हुई है वो फिनोमिनली इंक्रीज हुई है, मतलब बहुत मेजरली हमें इंक्रीज देखने को मिला है पॉपुलेशन में। Development has only contributed in increasing the multiple uses of limited resources in the world, with while there has been enormous increase in the demand for these resources. Development के आने से क्या हुआ है, बस multiple uses हो गए हैं, मतलब बेसिकली प्रेशर डबल हो गया है। ऑलरेडी रिसोर्सेज पे प्रेशर था, पॉपुलेशन का प्रेशर भी होने लग गया, बट डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, जो मिल्क आप पहले सिर्फ अपने ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, उस मिल्क से आज की डेट में इतने मल्टीपल यूसेज हो गए। आप क्रीम बना रहे हो, आप स्वीट्स बना रहे हो, आप चीज़ बना रहे हो, आप वैरायटी ऑफ चीज़ बना रहे हो, आप पनीर बना रहे हो। सो ये सब कैसे बन रहा है, क्रीम चीज़ बन रहा है, ऑल दीज थिंग्स, हाउ इट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग डेवलपमेंट की वजह से। आपको टेक्निक्स पता चल गई, आपके पास मशीन्स आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपने क्या कर दिया, उस एक चीज़ में मल्टीपल चीज़ें, उस एक रिसोर्स, मिल्क अकेला रिसोर्स, जिससे आपने इतने सारे यूजेस निकाल दिए। तो जो मल्टीपल यूजेस का कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट की वजह से वो आया। मल्टीपल यूजेस तो आ गए, बट रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे? आपने यूज, जो आप काम कर सकते हो वो तो मल्टीपल कर दिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, बट रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे उनको यूज़ करने के लिए? मिल्क तो पहले भी 10 किलो निकल रहा था, आज भी 10 किलो निकल रहा है, पर अब मिल्क से आप काम ज़्यादा करने लग जाओगे तो इससे क्या होगा? जस्ट इमेजिन, आपके पास 10 लीटर्स ऑफ, आई एम सॉरी kgs I said, if you have 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, वो 10 लीटर मिल्क से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उससे पनीर बना लो, या आप उसको एज इट इज़ एज अ मिल्क सेल करो। पनीर बनाओगे आप, 1 लीटर पनीर से आपका 1 किलो पनीर, 2 किलो पनीर बन जाए। 1 किलो पनीर बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 लीटर पनीर से आप मान लो, अज्यूम कर लेते हैं 2 kgs ऑफ पनीर निकल के आ गया 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब ये 2 kgs ऑफ पनीर, एक तो पनीर इज़ कॉस्टली, समबडी हु इज़ अर्निंग मोर पनीर को अफोर्ड कर सकते हैं, पर दूध को सबको अफोर्ड कर सकता था। तो इससे क्या हुआ कि मल्टीपल यूसेज की वजह से दूध को हमने, वो दूध जो पहले लोग पी लेते, उस दूध से आपने पनीर बना लिया। अब वो पनीर आपने बना लिया, आप सोचेंगे जैसे दूध पी लेते हैं पनीर खा लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो दूध की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी में, वो पनीर फुलफिल कर सकता है। और क्या पनीर सबको ही खरीद सकता है? यू मस्ट हैव हर्ड दैट लाइन, वो 3 इडियट्स का, दैट थोड़े दिन में पनीर भी सोने की थैलियों में मिलने लगेगा। सो व्हाट इज़ दिस? ये बोला जा रहा है कि भाई पनीर इज़ अ लग्जरी गुड, चीज़ इज़ अ लग्जरी गुड, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। कि आपके घर में डेली पनीर की सब्जी बनती है, इवन इफ यू कैन अफोर्ड इट, बट डू यू ईट पनीर डेली? डू यू ईट चीज़ डेली? नो। बट डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? येस। सो सी दी निटिग्रिटीज है कि आपने मल्टीपल यूसेज तो कर दिया, पर क्या वो यूसेज होने, मल्टीपल यूसेज के बाद रिसोर्सेज लिमिटेड है। वो 10 लीटर्स जो पहले पी रहे थे, वो 10 लीटर्स अब पनीर बन गया, सबको नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या आ जाएगी? इनइक्वालिटी आ जाएगी। जो पनीर खरीद पाएगा वही पनीर कंज्यूम कर पाएगा। So therefore the prime task before any development activity is to maintain parity between population and resources. तो डेवलपमेंट करने से पहले जो हमारा सबसे प्राइम, सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव, फोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम पॉपुलेशन के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में एक पैरिटी ला पाएँ। पैरिटी का मतलब होता है बैलेंस मेंटेन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और रिसोर्सेज नहीं है, और ऐसा भी ना हो कि रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और उनका ऑप्टिमम कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और ऐसा भी होता है, देयर आर रिसोर्सेज जो जस्ट पड़े हुए हैं और उनको आप ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें यूज़ करना आता नहीं है। आता होता तो कर लेते, अब तक हमको यूज़ करना नहीं आता है, इसीलिए वो वेस्ट पड़ा है। कितना ज़मीन है हमारे पास, इतना पानी है, बट हमारे पास उस पानी को यूज़ करने की, हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है, बहुत महंगी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है पानी को, सॉल्टी वाटर को फ्रेश करने की, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, नहीं कर सकते हम यूज़। सो द प्रॉब्लम इज बोथ साइड्स, रिसोर्सेज के साइड से भी प्रॉब्लम है और बढ़ती हुई जनता यानी कि पॉपुलेशन के साइड से भी प्रॉब्लम है। स्कॉलर्स लाइक सर रॉबर्ट माल्थस was the first one to voice this concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population.
तो हमने बचपन में पढ़ा था, माल्थस ने जो एक प्रोग्रेशन थ्योरी दी थी कि जो फूड रिसोर्सेज हैं, जो खाना है, वो आपका एरिथमेटिकली बढ़ता है। एरिथमेटिकली यानी 2+2 4, 4+2 6, 6 नहीं, एरिथमेटिकली यानी 2+2 4, 4+4 8, 8+8 16। बट जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है 2 × 2, मल्टीप्लिकेशन होती है 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16। सो दिस वे जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई होती है और जो फूड रिसोर्सेज हैं वो ऐड होते हैं। ऐसा नहीं है रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्लोली इंक्रीज होते हैं, बट एडिशन होता है। पॉपुलेशन के केस में देयर इज मल्टीप्लिकेशन, अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। सो ये सर रॉबर्ट माल्थस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये कंसर्न के बारे में बात की थी कि जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और सेम उस डिमांड के कंपैरिजन में रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं। Apparently this argument look logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws such as resources are not a neutral category. It is not the availability of resources that is important, but their social distribution. ये बात मैंने भी आपको बताई थी कि इनकी बात कहने के लिए सही है, बट रिसोर्सेज भी न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है। ऐसा नहीं है रिसोर्सेज फिक्स्ड रहेंगे हमेशा, रिसोर्सेज भी एक्सपैंड होते हैं। कैसे एक्सपैंड होते हैं, अभी हम मिल्क वाला एग्जांपल ले रहे थे, सेम एग्जांपल लेते हैं। पहले जो मैंने आपको पॉपुलेशन उस पर उनके फोकस में बताया था कि मिल्क से अब आपने पनीर बना लिया, पनीर डेवलपमेंट हुई तभी पनीर बना, तो ऐसा नहीं कि पहले भी पनीर बनाते थे, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपने पनीर बनाया, अब पनीर सबको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट फिर आपने अलग अलग सिस्टम्स निकाल लिए, आपने मिल्क का ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, पाउडर्ड मिल्क हो गया, पाउडर्ड मिल्क बनने लग गया है। आजकल जहाँ पे मिल्क नहीं पहुँच पाता है, जहाँ मिल्क नहीं है, वो पाउडर्ड मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। सो यू गेट रिसोर्सेज एक न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, मतलब वो फिक्स नहीं रहती है, और अगर वो है तो ऐसा नहीं है कि सबको बराबर से मिल जाए। प्रॉब्लम इधर ये नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, प्रॉब्लम इधर ये है कि रिसोर्सेज मिल किसको रहे हैं। क्या रिसोर्सेज सबको मिल रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं रिच पीपल डेवलपमेंट, टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका मतलब है पूरी ह्यूमैनिटी एज अ होल की डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में रिसोर्सेज का रेसिपिएंट कौन है, मतलब मिल किसको रहे हैं रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट मैटर, कि सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रिसोर्सेज का। Rich countries and people have access to large resource basket while the poor find their resources shrink. भाई रिच कंट्रीज हो गए या रिच लोग हो गए, उनकी जो रिसोर्सेज की बास्केट है, उनके पास जो टोकरी है जिसमें उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो उसमें रिसोर्सेज इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनकी टोकरी बड़ी होती जा रही है। क्यों बड़ी होती जा रही है भाई? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल यूजेस सीख लिए हैं। बट पुअर कंट्रीज, पुअर लोग उस तरह से और उनकी जो बास्केट है वो छोटी होती जा रही है। छोटी क्यों होगी? आपको, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इफ यू विल विन देयर विल बी समबडी हु विल लूज। हर कोई साथ में नहीं जीत सकता है। आप अगर कोई पेपर क्लियर करते हो तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो नहीं क्लियर कर पाया और आप क्लियर कर। इस चीज़ में कुछ नेगेटिव बात नहीं है, आपने मेहनत करी होगी, उसने नहीं करी होगी। बट इन केस ऑफ रिसोर्सेज, अगर किसी के रिसोर्सेज हमने देख लिया, हमने बात कर ली, मैंने आपको बोला आपके पास 10 एप्पल्स हैं, आप 10 एप्पल्स को आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइडियली आप 5-5 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बट आप में से एक जो है वो छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, आपने उसको दे दिए 6 एप्पल, आपके पास आ गए 4 एप्पल। छोटा बच्चा नहीं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी। तो जो एक है वो काफ़ी रिच है और एक जो है वो पुअर है, उसको आइडियली आपको 5-5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, पर मेरे पास 10 एप्पल हैं। 10 एप्पल की कॉस्ट है पर एप्पल इज 10 रुपीज़, एक्चुअली में इट्स 20 to 25 रुपीज़, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट एक एप्पल इज कॉस्टिंग रुपीज़ 10। अब ये 10 रुपये का एप्पल, अगर एक्स इंसान है और वाई इंसान है, एक्स इंसान ने अगर मुझसे 5 एप्पल खरीद लिए, 6 एप्पल खरीद लिए, उसके पास पैसे हैं, मेरे पास उसके पास 100 रुपीज़ इनकम है, वाई इंसान की इनकम है 40 रुपीज़ 50 रुपीज़।
10 एप्पल्स ही हैं, एक को ज्यादा देने के लिए मुझे एक को कम देना ही पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट एक को मुझे अगर ज्यादा देना है तो मुझे दूसरे को कम देना पड़ेगा। ये मेरी भी प्रॉब्लम है, एज अ गवर्नमेंट भी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं रिसोर्सेज अपने रिच लोगों को दे दूंगी तो पुअर के लिए ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम एक्स और वाई की साइड से भी है। एक्स अगर 6 एप्पल खरीद लेगा तो ऑटोमेटिकली 4 एप्पल ही बच जाएंगे ना वाई के लिए। सो अगर रिच अपनी बास्केट को बड़ा करते रहेंगे तो दैट इज बट नेचुरल कि जो पुअर है उनकी बास्केट का साइज छोटा होगा। So moving on, moreover, unending pursuit for the control of more and more resources by the powerful and the use of the same for exhibiting one prowess is the prime cause of conflict as well as the apparent contradiction between population, resource and वही बात हो गई। भले ही एक्स को एक ही एप्पल की जरूरत हो बट वो खरीद के कितने लेके जा रहा है, 6। क्यों? हमारे अंदर की ये जील हो गई है कि हमको सबको सबको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए। नोबडी इन दी वर्ल्ड फाइट्स फॉर लोअरिंग देयर पावर। आप किसी को ऐसा चाहते हो कि मेरी शक्तियाँ कम कर दो। हम बचपन में ड्रीम्स भी देखते थे तो ये देखते थे कि हमारे पास ऐसी मैजिक पावर्स हो जाएं, शक्तिमान जैसी शक्तियाँ आ जाएं, बैटमैन जैसे हो जाएं, हम स्पाइडरमैन जैसे हम ऐसे करें और उड़ जाएं। सो क्यों? एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर पावर, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, आप हो स्टूडेंट्स, आप कुछ आप सोच रहे हो कि बस कैसे ना कैसे आपके एग्जाम कैंसिल हो जाए, कैसे ना कैसे आपको पढ़ना ना पड़े, मतलब कुछ भी वी आर अज्यूमिंग हमको पावर चाहिए। एवरीबडी वांट्स पावर। आप अज्यूम करो कि मुझे ऐसी शक्तियाँ मिल जाए कि मेरे पेपर क्लियर हो जाए। आई एम अज्यूमिंग कि समबडी कैन कम एंड मेक वीडियोज फॉर मी, बट व्हाट, ये पावर्स हैं। हम हमेशा, हमारे पास जितना होता है, ह्यूमन बीइंग इज नेवर सेटिस्फाइड, नेवर। हमेशा कम है तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा है तो और ज़्यादा चाहिए। देयर इज नो बार लिमिट। सो एज वेल एज द अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज। और यही सारी लड़ाई का जड़ ही है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो इतना अपने पास स्टॉक करके रख रहा है, जिसको ज़रूरत है वो बेचारा तरस रहा है बट है ही नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड। वो वाई के घर में 5 लोग थे खाने वाले, उसको 5 एप्पल्स की जरूरत थी, बट एक्स के घर में 3 ही लोग थे खाने वाले, वो ले गया 7 एप्पल्स। अभी कुछ भी एज अ सेलर मैंने तो दे दिया बट मुझे नहीं देना चाहिए था। अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो ये बात किसकी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड मैनेज इन अ सेंस, इन अ वे कि मैं कंट्रोल करूं कि भाई नहीं, आप, मेरे पास इतना ही अवेलेबल रिसोर्स है, मेरे पास 10 ही एप्पल्स है तो मैं आपको 5 और आपको 5 दूंगी, या मैं आपको 3 आपको 5 दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपके घर में 3 लोग। तो गवर्नमेंट नोज कि जो रिच लोगों की नंबर है, जो क्वांटिटी है वो कम है, पुअर लोगों की क्वांटिटी और नंबर ज़्यादा है, तो आप अपने रिसोर्सेज मैनेजमेंट उस हिसाब से करें। सो यही पूरी प्रॉब्लम का जड़ यही है कि पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में एक पैरिटी नहीं बैठ रहा है। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। हमारा जो कल्चर है और हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स आर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स, हैविंग, प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, दीज आर सम नोशंस जो हमारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। ये कुछ टैबूज हैं हमारी कंट्री में विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। बट इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हमारी कंट्री में ही प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। काफ़ी हम सेंसिटिव रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को लेके। जब पहले ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई तुम क्यों अपनी विडोज़ की शादी नहीं कराते हो, इतनी यंग उम्र में दे आर विडो, गेट देम मैरिड, वो बात करते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, तो हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी वो अलाउ नहीं करती थी कि नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ने जाएंगी।
And this was not something given by God or not something given by the old scripture. This was a complete fixed notion of patriarchy जो throughout the time create हुआ था. मैंने पढ़ा, आपकी बहनें पढ़नी है. So time has changed. Obviously time has changed, but it is not a complete revelation. हम पॉपुलेशन को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी समय तक, आज भी आप देखोगे ना, सो वैक्सीन लग रही है, बट पीपल इन विलेजेस आर नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड. हम डेवलपमेंट को भी वेलकम नहीं करते हैं. वो रिच लोग क्यों ज़्यादा ले पा रहे हैं? क्योंकि वो डेवलपमेंट को वेलकम कर रहे हैं. द प्रॉब्लम विद पुअर इज दिस ऑल्सो कि हम डेवलपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि अगर हमको जॉब चाहिए आज की डेट में तो हमारे पास स्किल होना ज़रूरी है. मजदूरी करना इज टेम्पररी. आज मजदूर भी लोग पढ़े लिखे चाहते हैं. कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट आती है या नहीं आती है. एक बेसिक स्किल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम एवरीबडी. सो देयर इज sensitivity in terms of population growth, resources, development. It would not be incorrect to say that the ancient scriptures were essentially concerned about the balance and harmony among the elements of nature. But this was not true. जो मैंने अभी आपको नेगेटिव बात बताई है वो this was not true forever. जैसे in one of the classes we talked about how in ancient India, ancient history, even हम हरप्पन civilization में nature worship थी. हम इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता, हम नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे क्योंकि हमें पता था कि नेचर के बीच में और इंसानों के बीच में बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी है. बट विद टाइम हमारा जो फोकस है वो नेचर से शिफ्ट होके सोसाइटी पर आ गया. किस तरह से कंट्रोल करें, पावर करना है, चाहे वो पावर नेचर को करना हो, चाहे वो पावर अपने काउंटर पार्ट को करना. जो फोकस था वो बैलेंस से पावर पर आ गया. जहाँ आप एक बैलेंस मेंटेन करने की बात थी, नाउ यू आर डिजायरिंग फॉर पावर. और जैसे जैसे ये बैलेंस, जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, प्रैग्मेटिक शिफ्ट हुआ इन दी अप्रोच, सिचुएशन स्टार्टेड गेटिंग. महात्मा गांधी इन दी रिसेंट टाइम्स एडवोकेटेड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन. तो महात्मा गांधी ने काफ़ी कोशिश करी कि आप नेचर को एक हार्मनी बना के रखो. सिंथेटिक कपड़े नहीं, खादी, नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, नेचुरल चीज़ों का काम यूज़ दैट. ही वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंस्टीट्यूटलाइज्ड द लॉस ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट. तो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अर्बनाइजेशन. गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि शहर बने, इंडस्ट्रीज़ बने, डेवलपमेंट हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उनको लगता था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो ये इंस्टीट्यूशनल आप इंस्टीट्यूशंस बना रहे हो अलग अलग, इसकी वजह से लोगों की मोरालिटी चली जाएगी. लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी है, अभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ज़रूरी नहीं है इट इज़ रिलेटेड टू गॉड. स्पिरिचुअलिटी मतलब आप खुद से भी यू कनेक्टेड टू योर ब्रेन. क्या आपका दिमाग और आपकी जो हरकतें हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं भी या नहीं है. सेल्फ रिलायंस, खुद पे किसी पे भी बोझ नहीं बनना है. सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल. अभी नॉन वायलेंस क्यों? आपको ज़्यादा चाहिए, सामने वाले को भी चाहिए, आपको भी चाहिए. कैसे मिलेगा? मार के मिलेगा, लड़के झगड़ के मिलेगा, और कोई तरीका है नहीं. म्यूचुअल कॉपरेशन चला गया है लोगों के बीच में कि आप कॉर्पोरेट नहीं करना चाहते हो, यू डोंट वांट एक बैलेंस बनाना. सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, बट आई वुड डिफर इन समथिंग दैट इज दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन. उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने सबको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से पहले अगर आप एजुकेशन करते तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती. आपके एजुकेशन सेक्टर में लोगों को पता होता हाउ टू थिंक, आप क्यूरियोसिटी किल नहीं करते तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती.
एक क्लास अगर मोरालिटी की, स्पिरिचुअलिटी की होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट इट हैपेंड एंड प्रॉब्लम्स ऑल्सो. In his opinion, austerity for individual, trusteeship of social wealth, and non-violence are the key to attain higher goals in the life as an individual as well as the nation. गांधी जी के ओपिनियन के हिसाब से आप ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, कामनेस, और आपके मन में किसी के लिए भी गंदे थॉट्स, गंदा सोच नहीं होनी चाहिए. ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, सबको, ट्रस्टीशिप का मतलब हो गया कि भाई सबको मिले. सोशल वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ पे नहीं कि मैं रिच हूँ, सोशल वेल्थ हो भाई मेरा नेशन, मेरी कम्युनिटी रिच हो, सब लोग मिलकर वेल्दी हो. और नॉन वायलेंस ही 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक इंडिविजुअल और एक नेशन दोनों की वृद्धि, दोनों की प्रोग्रेस सिर्फ इन 3 चीज़ों से हो सकती है. हिज व्यूज़ इनको इकोड मतलब इनके ही व्यूज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर कर और भी जगहों पे लिखा गया. जैसे कि क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी लिमिट्स टू ग्रोथ, इसने भी गांधी जी के कुछ व्यूज़ को सपोर्ट किया था. शुमैशर्स की बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, दिस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम आइडिया. ब्रेटलैंड कमीशन, आर कॉमन फ्यूचर, एंड फाइनली एजेंडा 21 जो कि रियो कॉन्फ्रेंस में था. All these things somehow talked up in the same lines as Gandhi ji did, that development comes with a heavy cost. डेवलपमेंट हो ज़रूर जाता है, बट उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ बायसेस, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ discrimination, inequality. So we should aim for a development, we should aim for for harmony, we should aim for well-being before development in economic terms. So that's it. Thank you. Have a nice day. Please hit the like button, do subscribe the channel, and you can join the telegram group for the latest updates of the videos. And there is a link given in the description, as well as you can search Progress with Prachi and you will find the group. Thank you. Have a nice day.